आजकल हर को सजेस्ट करता हूँ कि आज हम फोन्स और गैजेट्स के और कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट ऑफ कंटेंट के इतना एंग्रॉस हो चुके हैं ना हर जगह से, कि हमारे पास खुद के लिए वक्त नहीं है। अगर हम जितने भी फिलोसोफर्स को या बड़े सक्सेसफुल लोगों को पढ़ें जिन्होंने एक्चुअली लाइफ में कुछ इम्पैक्टफुल किया है, तो वो सब दिन दिन में खुद के लिए वक्त निकालते हैं, अकेले अपने साथ बिताने के लिए कुछ दिन। Hello and welcome. From social issues to personal growth, let's break down the barriers and embrace the possibilities. This is a huge show, Say Something with Mads, and we are just getting started with our Gen Z, with our youth today, Fahad Malik. Hi, Fahad. How are you doing? And welcome to my channel. Hi, Madhumita. Thanks for having me. And yeah, I'm doing great. How are you? I'm doing well. Fahad is joining from Mumbai, and we have a lot to discover. I don't want to talk about Fahad because he's a very interesting character. He has a lot to say today, and the topic he has chosen is to speak about Indian education system, and this is something we all go through in our youth, when we were in school, college, and when we look back upon, we feel that yes, there is a lot of things we don't like about it, but there are a lot of strengths also. So, with all this, how what Fahad has to say about it, we'll discover. But first of all, Fahad, tell me about yourself, who Fahad is, and tell me about your family, about your likes and dislikes, about something about you to our audience. Introduce yourself. Okay, so hi guys, I'm Fahad. I'm 24 years old, physiotherapy student. Plus, I'm very much interested. If you ask me about my interests are very diverse. I'm interested into Yes. psychology. I'm interested into history, geography. I'm interested into music and memes, marketing. Teaching is the is one of those things that give me, I would say, a spiritual experience. So, for my audience, why I connected with Fahad was Fahad post on LinkedIn somehow connected with me. He has this quirky sense of humor. So, first of all, Fahad, talk about your Instagram account. What is it called? Trescomas. And what That's is it all Thomas. about? It's a very fun thing. So, you can share your journey about how it all started with your friends. And I find it very interesting. So, speak about that. So I would love to speak about that. So Tess Commerce की journey start हुई basically just after pandemic वाला year के. After 2022, it all started in 2021 when we properly started meeting, me and my other two friends, Nilesh and Saif, and I'm really thankful to them that they did this with me, and they started out with Tess Commerce. Even after being so busy with their jobs, even after being so occupied with many other things, still वो आज भी वो लोग time निकालते हैं मेरे साथ hang out करने का, ये करने का. आई एम नॉट इन लाइक अ प्रॉपर जॉब, बट स्टिल बिकॉज वो लोग मुझसे कई गुना ज्यादा बिजी हैं फिर भी. सो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 2021 में कि वी वर जस्ट सिटिंग, थ्री ऑफ अस. हम तीनों ने, जैसे मैंने सिलिकन वैली देखा, मेरे दोस्त नीलेश ने सिलिकन वैली देखा, दिस वेब सीरीज ऑन एच ऑन डिज्नी हॉटस्टार एंड अदर OTT platforms you can check out Silicon Valley. So then we were talking about, we were laughing. So Saif was not able to connect with it because he hasn't seen it yet. So Saif ने फिर बोला कि भाई ये क्या है, मुझे भी जानना है, सिलिकन वैली क्या है, मैं भी देखता हूँ. तो when he started watching it, he also started enjoying it. So Oh. उसके बाद फिर देन थ्रेस कॉमर्स हम में एक मजाक के तौर पे बनने लग गया, एंड यूज्ड टू प्रैक्टिस दोस डायलॉग्स विद ईच अदर. वी यूज्ड टू गिव ईच अदर कैरेक्टर्स नेम, दैट योर जिल फॉयल, योर रिचर्ड, योर दिस, योर दैट. Okay. सो उसके बाद हमने ये आइडिया मेरे इसमें ख्याल में आया कहीं ना कहीं कि यार हम तीनों एक इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं, हम स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, वी ट्रस्ट ईच अदर, हम लोग रोज उठते बैठते हैं, ऐसे बातें करते हैं. तो क्यों ना पॉडकास्ट जैसे ही कुछ कर लेते हैं जहाँ हम अपने थॉट्स को शेयर करते हैं. मतलब Ah. हमने ये सोचा कि अभी इतने सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कुछ बकवास भी बोलते हैं ऑनलाइन, लोग, उनकी भी एक ऑडियंस है. तो हम अगर कुछ अपने थॉट्स के थ्रू कुछ पॉजिटिव बाहर इम्पैक्ट कर पाए, तो हमारी भी तो कुछ ना कोई तो जरूर होगा जो हमें भी सुनना चाहेगा कहीं ना कहीं. एवरीबडी बिल्कुल, हैज मैंने देयर सुन ओन. लिया आपको, मैंने आपको जी, सुन लिया। थैंक यू. सो हर की कहीं ना कहीं ऑडियंस है. तो यही चीज के साथ प्रेस कॉमर्स पहले हमने ऑडियो के साथ शुरू किया था. वी जस्ट बॉट अ सिंगल माइक. हमने एक माइक से पहले शुरू किया, और हमारा पहला पॉडकास्ट ही एजुकेशन सिस्टम के बारे में था. इट्स टॉपिक वाज एजुकेटिंग द एजुकेशन सिस्टम, जो अभी भी एंकर, स्पॉटिफाई और सारे प्लेटफॉर्म्स पर है. सो वैसे करते करते हमने ऑलमोस्ट एक साल निकाला वॉइस ये करते हुए, लेकिन लिसनर्स उतने नहीं आ पा रहे थे.
बिकॉज द वॉइस मार्केट इज वेरी स्कैटर्ड. जो वॉइस पॉडकास्ट का मार्केट है सिर्फ ऑडियो का, वो बहुत स्कैटर्ड है. कोई स्पॉटिफाई यूज करता है, कोई विंक यूज करता है, कोई गाना, कोई Amazon म्यूजिक यूज करता है. सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस और चॉइस है. सो हमने ये सोचा कि फिर मैंने ये सोचा कि यार लिसनर्स नहीं आ रहे, हम मेहनत तो करते हैं, ये तो करते हैं कि ठीक है, हम पहला तो हमारा ये मोटिव था कि हम कुछ लर्न करें थ्रू रिसर्च एंड उसको हम शेयर करें लोगों से. बट ये था कि वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि हर यार कोई सुन भी ले. कहीं ना कहीं एक हाँ मोटिव वो भी हाँ था हाँ, सेट कि कोई हमें बिल्कुल बिल्कुल सुने भी. बिकॉज मुझे मुझे मैंने सोचा कि अगर यार लिसनर्स ऐसे ही कम होते रहे ना, तो ये दोनों की मोटिवेशन चली जाएगी हाँ और मैं भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाऊंगा. इन दोनों की कहीं मोटिवेशन अगर कम हुई तो मैं भी, तो मेरे थॉट आ, तो मैंने फिर अपने while I was traveling in local, तो मैंने देखा कि सबको यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है और फेसबुक जो मोस्टली सबके फोन में कॉमन है. मैंने बोला यूट्यूब तो डिफॉल्ट ही आ रहा है, इफ यू आर बाइंग अ फोन तो डिफॉल्ट उसमें डाउनलोड ही आ रहा है. तो क्यों ना एक काम करते हैं, ऑडियो तो कर ही रहे हैं, वीडियो फॉर्मेट में चले जाते हैं, वहां से ऑडियो निकाल के उसे अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म पे जहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. जिससे जो कंफर्टेबल होगा वो उसे सुन लेगा. जैसे अगर वो वीडियो देखना है तो वीडियो देख लेगा, किसी ऑडियो सुनना है तो ऑडियो उस प्लेटफॉर्म पर सुन लेगा. तो ऐसे मैंने फिर उन्हें कन्विंस किया कि यार अब टाइम है, फोन है, अब थोड़ा पहले माइक इंट्रोड्यूस किया था, फोन इंट्रोड्यूस करते हैं. तो वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग विद आवर फोन एंड ऐसे करके यूट्यूब पे क्रैश कॉमर्स की ओवरऑल शुरुआत हुई. तो अभी हम वाह, उसी चीज को धीरे धीरे बढ़ाना चाह रहे हैं. सुपर्ब. एंड And I feel you, and I completely agree that कोई सुनने वाला होना चाहिए, because we are doing it uh, so that it reaches some people. So that's how the motivation is. So बताइए कि ये एजुकेशन सिस्टम से आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, और क्या आपके व्यूज में क्या चेंजेस होने चाहिए. ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट, you said you have got a quota to study, and that changed your whole idea about education system and gave a new turn to your life. So take us back to that journey to connect it to the education system. एजुकेशन सिस्टम का ब्रॉडली बेसिस, इफ आई टेल यू, मैं इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम हर जगह है. और हम एजुकेट तभी हो सकते हैं जब हम सही में चाहते हैं एजुकेट होना, या हमें उसके साथ साथ हमें सही में कोई बंदा उस तरफ, कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल सही तरह से एजुकेट कर सकता है. जैसे कि हो सकता है कि मुझे क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट सीखने में, इवन इफ विराट कोहली क्रिकेट सीख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है इतने सालों से, तो वो भी एजुकेट हुआ है क्रिकेट के बारे में. राइट. हाँ सो एजुकेशन सिस्टम जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर, डॉक्टर या कन्वेंशनली आप बुक लेकर पढ़े, दैट इज ओनली एजुकेशन सिस्टम. जो हमारे इंडिया में एक कन्वेंशनल इमेज है एजुकेशन सिस्टम की, आई फील हर जगह एजुकेशन सिस्टम है. इट डिपेंड्स अपॉन कि आप एजुकेट कैसे हो रहे हैं, और इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका फेवरेट वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक क्या है जिसमें आप एजुकेट होना चाहते हैं. सो मैंने ये देखिए, मोस्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम जो हमारा ओवरऑल है ना, इसमें लोग उस चीज में एजुकेट नहीं होना चाहते जिसमें उनका कोर कैलिबर है, उनकी कैपेबिलिटीज है. वो उस पर्टिकुलर चीज को छोड़ के उन हर चीजों में एजुकेट हो रहे हैं जिसमें शायद उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल और सेवरल रीजंस. हो सकता है कि उनके हालात ऐसे हैं जो उन्हें फोर्स करते हैं, हो सकता है किसी का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ऐसा है, जैसे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का होता है कि आप पेरेंट्स, हाँ. इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो, लॉयर बन जाओ, तो ही आपका कोई एक इमेज है, अदरवाइज या गुड फॉर नथिंग. मे बी वो भी कहीं ना कहीं स्टेम होता है ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, Insecurity, कह सकते yes. हैं इनसिक्योरिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यही चीज है मतलब. लेकिन मैंने ये जेन्युइनली देखा है कि अगर कोई भी इंसान उस एजुकेशन को सही तरह से परस्यू करे उस पर्टिकुलर सेक्टर में जिसमें वो जाना चाहता है, जिसमें उसकी इनेट इंट्यूशन उसे बोलती है जाने के लिए, तो आई थिंक एटलीस्ट ही विल बी सक्सेसफुल. बिकॉज आप एनीवेज अनसक्सेसफुल होने ही वाले, आप उस चीज में अगर जाएंगे जिसमें आपका दिल नहीं है, तो इससे बेहतर है कि हाँ. वो क्यों ना परस्यू करें कि जिसमें आपका दिल है, तो बिकॉज वहां पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट ज्यादा तो है. So from quota to physiotherapy to this, ये सब कैसे हुआ? ये सब क्या चेंजेस आ रहे हैं? And you are just 24. So इतना कुछ तुमने अभी से ही तुमने चेंजेस देखा है अपने एजुकेशन सिस्टम में. So, I mean, staying in Mumbai, being in Mumbai, I have a very, I mean, I would say, by God's grace, I have a very comfortable life. Not ऐसा struggle नहीं रहा. School पास रहे, colleges पास रहे, through travel करना हो या facilities की availability के terms में भी अगर मैं बात करूँ तो. But then हुआ ये कि उसके बाद वो होता है ना कि जैसे आप 8th 9th में आने लगते हैं, अरे अब लाइफ के बारे में डिसाइड करो क्या करना है जिंदगी के बारे में. हाँ आपके हाँ. आपके सारे दोस्त So कुछ you were a ऑलरेडी. good student? You are an average student, or what kind of? I was average, slightly above average, slightly above. I was in the range of like 70s, 80s. Okay.
या हाँ, so सो so बिकॉज what बिकॉज happened to मुझे इतना Kota? सारा कुछ एक्सप्लोर करना था कि आई वाज ऑलवेज लाइक कि हाँ पढ़ाई जितना हो पा रहा है अच्छे से बस कर लो, बाकी और चीजें कर, कुछ देखते हैं। ठीक है। सो कोटा की जर्नी ऐसी थी कि आफ्टर 10th 11th 12th मैंने ऑब्वियसली 11th 12th की प्रिपरेशन की साइंस में, जो मेरे बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, एंड देन उसके बाद हुआ ये कि आई गिव माय एमएचसीटी। पहले क्या होता था इन द ईयर 2016 तक सीटी थे, मतलब हाँ, हर स्टेट्स के अपने एग्जाम होते थे, एआईपीएमटी भी था साथ में, लेकिन बिकॉज हम स्टेट बोर्ड से, मैं स्टेट बोर्ड से ही हूँ महाराष्ट्र एसएससी से, तो हाँ, हमारा हाँ, फोकस ये रहता था कि एमएचसीटी में हो जाए ताकि हम yes, वहाँ के थ्रू एडमिशन ले लें, बिकॉज हमारा सिलेबस और वो सेम है, उनका सिलेबस हाँ, सेम है। सो उसके बाद लेकिन फिर गवर्नमेंट ने रूल ला दिया कि अब नेक्स्ट ईयर से एआईपीएमटी होगा, नीट हो जाएगा कॉमन, सबको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा एंड उसी के थ्रू सिलेक्शन होगा। सो मैंने उस साल जब so you सीटी were दिया तो you were interested, sorry to interrupt, you were interested in being a doctor, not या आई वाज, आई मीन आई थॉट आई वाज, मतलब ऐसा वो, okay, आई आई कम दैट टू दैट पॉइंट एज वेल कि हम अपने आप से yes, झूठ कैसे बोलते हैं हर दिन, हाउ yes, हाउ correct, हाउ correct, हाउ डिल्यूजनल वी आर। सो उस पॉइंट पे भी कि आई थॉट आई वांटेड टू डू दिस बिकॉज मेरे चारों तरफ यही आवाज गूंज रही थी सब जगह से, इधर इधर इंजीनियरिंग, इधर मेडिकल। सो इंजीनियरिंग का तो उतना स्ट्रॉन्ग कॉलिंग नहीं था, बट मेडिकल का कहीं ना कहीं आता कि ठीक है, आई एम समवेयर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, तो मैं कर लूंगा या okay, मुझे परस्यू करना चाहिए। सो मैंने जब मेडिकल ले ली तब मुझे करते करते समझ में आया कि नहीं यार, जब मेरे मार्क्स खराब आते तो मैं सोचता था अरे नहीं यार अगली बार तो हो ही जाएगा, कोई नहीं अगली बार तो हो ही जाएगा, आ ही जाएगा, नहीं आई एम योर, तो मतलब करना है मेरे को, करना है करना है। बट मैंने कभी अपने आप को टाइम देकर ये नहीं सोचा, अपने अपने आप से सेल्फ टॉक नहीं किया कि नहीं, आई डेफिनेटली डोंट वांट टू डू दिस, if I have to like choose between a yes or a no, whether I have to do, whether I have to pursue this MBBS or not, so मैंने वो अपने आप से कभी सवाल नहीं पूछा, yes and no क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। हम एक ग्रे एरिया में ऐसे से कह सकते हैं पेंडुलम की most तरह of us, yeah, झूलते रहते हैं। सो उस मोमेंट पे फिर वहां से जब, तभी भी मेरा यही फेस चल रहा था आफ्टर 12th स्टैंडर्ड में भी, एंड ऑब्वियसली एमएचसीटी में मेरा नहीं हुआ बिकॉज आई वाज नॉट टोटली इनटू इट विद माय सोल। हाँ, तो हाँ, स्टिल माय पेरेंट्स वुड बी लाइक कि ठीक है अब तो एआईपीएमटी नीट हो गया है, तो अब तो एक काम करो, यहाँ पे तो एनसीईआरटी की कोई अच्छी कोचिंग है नहीं जो एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ाते हैं ज्यादातर मुंबई में, ऐसा बिकॉज कल्चर ही ज्यादातर स्टेट बोर्ड का है, तो उससे बेहतर है कि वहाँ कोटा चले जाओ, बिकॉज मेरे कजिन ब्रदर्स भी वहां से पढ़ चुके थे, दे वेंट टू बिट्स पिलानी, वन वेंट टू एक आईआईटी भी, तो देवर लाइक कि हाँ वहां जाएगा तो हो ही जाएगा। तो ये कन्वेंशन होता है ना, जाएगा तो हो ही जाएगा, पढ़ना तो खुद है मुझे, है ना, पढ़ा तो हाँ, हम ही correct. देंगे, ये एंड लोग नहीं ये सोचते। ये एंड ये फैमिली में अगर दो चार ऐसे निकल आते हैं इंजीनियर्स, तो फिर तुम्हारा हो गया, बैट बच गया तुमको, फिर तो वही एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे कि उसने कर लिया तो तुम भी कर लोगे। फैमिली में एग्जाम्पल्स होना और भी बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है एग्जैक्टली लाइक यू सेड। सो उस वजह से मैं पहले साल कोटा चला गया आफ्टर जस्ट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, तो तब का जर्नी ठीक था, आई मीन इतना बुरा नहीं था एक साल का, बट आई वाज श्योर कि अब वापस नहीं आना यहाँ पर। जब मैं वापस आ रहा था वहां से, तो अब वापस नहीं आना यहाँ पर, इतना मैं श्योर हो चुका था, मुझे श्योरिटी मिल गई थी, मुझे जितना सीखना था आइडिया लगा। एंड उस साल भी आई डेंट स्कोर मच वेल, मतलब मैं पढ़ रहा था बट आई वाज लाइक कि ठीक है, लाइक एवरेज और बिलो, मतलब इतने नहीं थे कि आई थिंक कि मुझे कहीं मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छा मिल जाएगा। बट स्टिल मेरे ये क्लियर हो गया था कि नहीं यार, कहीं ना कहीं अब वो ज्यादा वॉइस स्ट्रांग होती जा रही है, बिकॉज स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है ना, मेडिकल में जाने का स्ट्रगल और बढ़ता जा रहा है, वक्त भी मेरा वो चीज कंज्यूम कर रही थी, तो कहीं ना कहीं वॉइस स्ट्रांग होने लगी कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। एंड देन फिर उसके बाद फिर बाद में, बट स्टिल पेरेंट्स वर लाइक फोर्सिंग कि अब ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, इतना पानी में उतर चुके हो, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ एग्जांपल्स की, हाँ, अब जब आधा सफर पार कर लिया, थोड़ा बाकी कर ही लो, कर ही। तो फिर उस सेंस में आई थिंक वो भी एक प्रेशर था, and मुझे लगा कि यार ये रोज रोज के सुनने से तो बेहतर है वापस चले जाओ। तो वहां तो सुकून तो था, एटलीस्ट मेरा अपना एक सेपरेट प्राइवेट स्पेस है जहाँ मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं, एटलीस्ट मैं कुछ तो करूंगा, फिगर आउट करूंगा, वहीं पढ़ूंगा। तो लेकिन वो एक्चुअली मेरा वो डिसीजन था जो सबसे अनवाइज डिसीजन था, वो भी स्टिल एक स्लाइट, एक बहुत हाई लेवल पे इमेच्योर डिसीजन था कि मैंने प्रॉब्लम से भागना सीखा, एंड भाग के मैंने सोचा मैं वापस चले जाऊँ। सो आई वेंट फॉर अनदर ईयर, 12th के बाद तो मैं गया ही था, उसके बाद और एक साल में वहां चला गया वापस से इन सब चीजों से बचने के लिए। ओके, मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया था फर्स्ट ईयर कोटा से आने के बाद, बिकॉज मेरे माइंड में ऐसे नॉट्स थे इतने सारे कि मैं क्या करूंगा लाइफ में, ये तो नहीं करना है, ये अंदर से हाँ, कॉलिंग आ रही है कि नहीं करना है, तो और क्या करूंगा। सो मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया, तो उसके रिजल्ट्स आए, एंड काउंसलर ने ये बोला कि देखिए,
आई डोंट थिंक आपका बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा तो कुछ अच्छा कर पाएगा, इसके एप्टीट्यूड क्लियरली डॉक्टर वाले तो नहीं है। इसे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में बहुत अजीब सा फील होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, तो डॉक्टर क्या ही बनेगा। इससे बहुत डिप्रेस्ड फील होता है, तो डॉक्टर क्या ही बने। तो आप इसे मैनेजमेंट या कोई और जो ये है उन चीज़ों में एनरोल कराइए जहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज कम्पेयर टू मेडिकल और हेल्थ केयर। तो आई वाज लाइक क्या पता शायद ये कहीं ना कहीं हिंट है कि मेरा जो अंदर का इंट्यूशन है उसको ये कहीं ना कहीं कंफर्म करता है। हाँ सो फिर लेकिन उस फिर भी मैंने नहीं ये हुआ बिकॉज ये सारी चीजें हो रही थी। वो होता है ना, जब तक आप पे एक डेस्परेट सिचुएशन नहीं आ जाता तब तक आप चेंज नहीं आते। वो चेंज आने के लिए वो पेन लेवल का थ्रेशोल्ड पार होना चाहिए, तो स्टिल पार नहीं हुआ था, जो मेरा नेक्स्ट ईयर कोटा जाकर हो गया कहीं ना कहीं उससे। तो उस साल मैंने बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई, मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, बैकलॉग्स बहुत ज्यादा शुरू हो गए पोर्शन में, पढ़ाई पीछे छूट रही थी, मार्क्स तो और ही आ रहे थे मुझे। फिर लगने लगे आई वाज गेटिंग डिप्रेस्ड समवेयर हाँ बहुत ज्यादा। एंड अकेले आपको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं होता, कोई ऐसी दो लफ्ज अच्छे बोलने वाला नहीं होता कोई वहां पर, बिकॉज हर कोई अपनी कंपटीशन में लगा है ना। हाँ हाँ सो उस जगह पे मुझे समझ में आया कि यार मतलब यहाँ अगर मैं मर जाऊंगा तो किसी को शायद पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ऐसा हो रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो सुसाइड कर लेते हैं, उनकी बॉडी 2-2 दिन तक अंदर रूम में रहती है बट किसी को पता नहीं। और मैं ये चीजें देख रहा था अपने चारों तरफ। सो उस जर्नी ने मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म किया कि यार क्या लाइफ यही कर। फिर मुझे वो जो मच नीडेड एक अकेले का टाइम है ना, मैं आजकल हर को सजेस्ट करता हूँ कि आज हम फोन्स और गैजेट्स के और कॉन्स्टेंट बॉम्बार्डमेंट ऑफ कंटेंट के इतना एंग्रॉस हो चुके हैं ना हर जगह से, कि हमारे पास खुद के लिए वक्त नहीं है। अगर हम जितने भी फिलोसोफर्स को या बड़े सक्सेसफुल लोगों को पढ़े जिन्होंने एक्चुअली लाइफ में कुछ इम्पैक्टफुल किया है, तो वो सब दिन दिन में खुद के लिए वक्त निकालते हैं अकेले अपने साथ बिताने के लिए कुछ दिन, जो जिसकी वैल्यू मुझे कोटा जाकर समझ में आई। क्योंकि एक वक्त ऐसा है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने बोला अब मैं नहीं पढ़ूंगा, चाहे मैं फेल हूँ कुछ भी हो, अब मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरा मेंटल ये जवाब दे चुका है। एंड आई क्विट, आई जस्ट डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर। हम्म चाहे मैं जो भी मेरा सिचुएशन रहे, बिकॉज मैं जितनी बार बुक देख रहा हूँ और डिप्रेस ही हो रहा हूँ, उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकल रहा कहीं ना कहीं। हम्म वहां पर जब मैंने खुद से सेल्फ टॉक किया तो मुझे ये सवाल अपने आप से पूछा कि यार जिंदगी यही करने के लिए बनी है या मैं इसी तरह से मरना चाहता हूँ जस्ट, हम्म या मैं ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करके ये मेरी लाइफ है, राइट, आई हैव गिवन मेरी यूनिक आइडेंटिटी है, शायद मेरे जैसा हम्म कोई नहीं है। हर ह्यूमन हम्म बीइंग एक कम्प्लीटली डिफरेंट है, 0.1% ही सही लेकिन डिफरेंट जरूर है। तो मेरी हम्म आइडेंटिटी मुझे ये नहीं बोलती कि मैं ये करके खुश रह पाऊंगा। मैं उसी चीज में खुश रह सकता हूँ जिसमें मेरा दिल टोटली इन्वॉल्व है, मेरा माइंड सोल पूरी तरह से इन्वॉल्व है, जो मुझे मेडिकल के लिए नहीं आती। इवन आज जब मुझसे यंग स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया मैं कोटा जाऊँ क्या, मेरा मेडिकल का 1 साल दूं क्या, मैं बोलता हूँ भाई तुम्हें सोते जागते उठते बैठते गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के चेहरे में बाथरूम में नहाते धोते खाते पीते हर वक्त अगर मेडिकल कॉलेज दिखता है, इफ यू आर दैट डेस्परेट एंड डेडिकेटेड, तभी आप जाइए, अदरवाइज यू आर एनीवेज गोइंग टू फेल। बिकॉज कंपटीशन इतना डिफिकल्ट और इतना टफ है कि नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल you have that hunger and passion for that. I mean, this applies for most of the things in life, but मैं सिर्फ स्पेसिफिकली अगर especially कोटा for this आईआईटी या एडवांस इन सब की बात करना चाहता हूँ। इवन मेरा एक फ्रेंड है आईआईटी बॉम्बे से, नाउ ही इज इन न्यूयॉर्क, ही इज परस्यूइंग हिज मास्टर्स। उसने भी मुझसे यही बोला था कि मेरे जो फ्रेंड है ही इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, so he scored really well, that's why he got into ये, he was a topper and everything. So I was talking to him, he said कि भाई इवन मेरे नेबर के बच्चों को भी मेरा एग्जांपल दिया जाता है कि उसने कर लिया, वो तुम्हारा नेबर है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। वो भी तुम्हारी तरह yes रहता है, वो भी तुम्हारी तरह खाता है, वो उसे भी तुम्हारी तरह कपड़े मिलते हैं, उसने कर लिया तो तुम क्यों नहीं। तो ही टोल्ड मी कि भाई वो नहीं बन पाएगा, वो आईआईटी में नहीं जा पाएगा। आई कैन टेल यू, यू नो व्हाई, बिकॉज he doesn't have the same hunger and passion that I have, और he is not me। उसके हम्म वो एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है, उसकी पसंद नापसंद कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसके मोटिवेशंस और एस्पिरेशन मुझसे कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो जरूरी नहीं है हम्म कि मैं चला गया आईआईटी बॉम्बे, बिकॉज आई जेन्युइनली वांटेड टू बी इन आईआईटी, जिस वजह से मैंने हम्म क्लियर कर लिया दैट टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग व्हिच इज अ टॉप ब्रांच इन इंडिया। हम्म बट जरूरी नहीं है कि वो कर पाए। correct सही। Fahad as a youngster, I have a 23-year-old son who is also done engineering and he hated engineering. He said कि ये जो डिग्री है ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, एंड उसने वो इंजीनियरिंग की डिग्री मेरे टेबल पे रख के बोला अब मुझे मत बोलना मुझे क्या करना है. Thankfully, we didn't force him to go to IIT. He got into Bombay में engineering college में मिल गया था तो हमारे साथ रह रहा था. But I think he hated us the most during that 4 years. 4 years Uh, आई। of, yeah. So
speaking, I'm completely identifying with this, what you are going through. But एक बात बताना, एक पूछना ये बहुत जरूरी है इस टाइम पे कि तुम्हें वो कौन एंकर मिला, कि तुम्हें किससे बात करके सबसे ज्यादा लगा कि कोई बात नहीं, मैं इतना डिप्रेशन में हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बट यू स्टिल केम आउट ऑफ इट। तो कौन था, या क्या पढ़ा तुमने, या क्या सुना तुमने, या किससे कनेक्ट किया? कोई तो एक ऐसा होता है जिससे कि आप बात कर सको। आप अकेले अकेले बाहर नहीं आ सकते ये सब चीजों से। तो वैसा कौन था आपके लाइफ में? आई थिंक लोगों के टर्म्स में तो कोई नहीं था। लोगों के टर्म्स में तो देयर वाज नोबडी, नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, बट जो ये एंटरप्रेन्योरशिप का ये था वो मुझे राइट फ्रॉम 11th 12th कहीं ना कहीं शुरू हो गया था। आई यूज्ड टू रीड बुक्स। मुझे बचपन से ये बहुत शौक था ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का। सो पहले मुझे भी बहुत, मैं या साइंटिस्ट की पढ़ता था। पहले पहले मेरा ये थॉट था कि दैट आई वुड डू समथिंग इन फिजियोलॉजी इन मेडिसिन, एंड आई वुड गो टू अफ्रीका, डिस्कवर सम मेडिसिन, एंड मैं नोबेल प्राइज वाह, ये वो। हाँ हाँ बिकॉज वो हाँ तब तब शुरू हुआ था जब साइंटिस्ट से नॉलेज सबके बारे में पढ़ने, जैसे ओपेनहाइमर है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, सीवी रमन है, इन सब के बारे में। बट वो कहीं ना कहीं फिर फेड हो गया। बट उसके बाद हाँ 10th के बाद मुझे स्टार्ट हुआ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ने का एक शौक चढ़ा, पता नहीं क्यों। एंड आई वाज लाइक, आज भी मुझे याद है जो मैंने सबसे पहली बुक खरीदी प्रॉपर पायरेटेड सेविंग करके, वो थी स्टीव जॉब्स की ऑटोबायोग्राफी बाय वॉल्टर isaacson, एंड दैट्स एन अमेजिंग बुक। फिर जब मैंने जितना स्टीव जॉब्स के बारे में जाना, लाइक दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन। मतलब दुनिया उस वक्त, आज मैं तो अभी ये शायद सोच रहा हूँ बिकॉज मेरे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इतना सारा फैसिलिटी, गाइडेंस है थ्रू इंफॉर्मेशन। थ्रू इंटरनेट है। बट उस बंदे ने उस वक्त ये चीजें की। दैट मीन्स इट वॉज नॉट द एनवायरमेंट, इट वॉज समथिंग इन हिज इनेट नेचर जो उसने अपने अंदर चेंज किया। वो डिसीजन जो उसने अपने लिए लिए कि मुझे ड्रॉप आउट करना है, ऑब्वियसली हिज डैड, हिज पेरेंट्स सपोर्टेड हिम अ लॉट, एंड उन्होंने उसको उस चीज के अंदर कहीं ना कहीं हेल्प भी किया जिस तरह से भी। बट मुझे लगा कि यार they don't have any conventional education या huge degrees, they still made it in life good। मैं तो उस वक्त, बिकॉज मैं इतना इमेच्योर 16 17 के एक बच्चे के माइंड से वैसे सोचता है, इसने कर लिया तो मैं भी कहीं ना कहीं कर ही लूंगा यार। मतलब मुझे वो चीज, जैसे इवन रितेश अग्रवाल ऑफ ओयो, यूज्ड टू एडमायर हिम अ लॉट कि यार ये तो कॉलेज में नहीं पढ़ा हुआ है। फिर इवन रितेश अग्रवाल वेंट टू कोटा, और वो कोटा से फिर ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाता था एंटरप्रेन्योरशिप सेमिनार्स के लिए। he was also enrolled for engineering की कोचिंग, बट उसने उतना अच्छे से ये नहीं किया, तो he somewhere got into some college ऐसे ही कोई नॉर्मल सा। and I was like कि अगर यार ये सब कर सकते तो मैं भी इन्हीं की तरह ना, मैं कहीं ना कहीं तो कर ही सकता हूँ। मैं भी एक ह्यूमन हाँ बीइंग हूँ, मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप में हाँ कुछ ना कुछ करना है। बिकॉज इतना पता था कि हाँ कुछ तो जिंदगी में करना है, एंटरप्रेन्योर तो जरूरी बनना है। तो हाँ फिर मैं कहीं तब इनके ये स्टार्ट हुआ कि हाँ। हाँ। तो फिर इनकी स्टोरीज ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया कि यार कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और ये फीलिंग So आती you थी कभी ना कभी। So you said that these books are somebody's can actually be a kind of hand holding. हम books को कभी हम सोचते हैं हाँ हमारे पास टाइम है तब हम बुक पढ़ेंगे, but what books can do to a young people, I talk about this all the time कि books से अलावा कोई और friend हो नहीं सकता है. This is the biggest example कि आपने उनसे सीखा. Fahad, my next question would be, you are now doing physiotherapy, but you see physiotherapy as a profession to make money. But your more interest lies in, you are very good at social media, you have a lot of ideas, you want to do something, but you want a career, right? You don't want to put everything in one basket, all the eggs in one basket. You want to have a stable career, उससे पैसे आते रहे, plus you want to do, right? Is this what most of the youth think today? कि हम एक करियर रखें और साथ में अपनी जर्नी ऑफ entrepreneurship सोचते रहे, करते रहे. But actual entrepreneurs say that you have to actually leave everything and jump right at a very young age. Like करना है तो कर डालो. Like don't be on a two boat. What do you have to say about this? आई फील लाइक कि इसके अंदर दो तरह के लोग होते हैं मेरे हिसाब से। एक होते हैं जो फुल टाइम उस करियर को ही परस्यू करना चाहते हैं, वट एवर इट इज। लेट्स से कि कोई अगर बायोटेक में फॉर एग्जांपल अगर वो रिसर्च करना चाहता है बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो टोटली अगर उसमें अपना करियर देख रहा है तो इज लाइक कि मैं सोल फोकस इज जस्ट बायोटेक्नोलॉजी। मैं इसी में पैसे कमाऊंगा, इसी में रिसर्च करूंगा, इसी में पेपर्स लिखूंगा, इसी में सब कुछ करूंगा या करूंगी।
और दूसरे एस्पेक्ट में वो लोग होते हैं जिनके इतने मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं कि दे आर लाइक कि ठीक है हम जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी ऐसा स्टेज अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे, या कोई कोई ऐसी ऑब्स्टिकल आने नहीं देंगे जो हमें इतनी सारी चीजों को एक्सप्लोर करने से रोकती है. जैसे आई वाज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट ऑफ नवल रविकांत विद जो रोगन, द जो रोगन एक्सपीरियंस. इट्स अ वेरी फेमस पॉडकास्ट. सो नवल रविकांत ने उसमें एक लाइन बोली थी कि हिज फ्रेंड सेड कि स्पेशलाइज्ड वर्क इज फॉर इंसेक्ट्स, वी आर ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस. और एक ही लाइफ टाइम है, जिंदगी एक ही है मेरे हिसाब से, सब कुछ करना इसी में है. तो अगर जीना ही है तो पूरा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो गम और वो कहीं ना कहीं जो मलाल रह ही जाता है ना, जब हमारा अभी तो ये रियलाइज नहीं होगा, ठीक है लाइफ चल रही है, फ्लो के साथ बह रही है, बट जब वो आता है ना, जब डेथ के अराउंड वाला जो टाइम होता है, जब दुनिया को छोड़ के जाने वाला वक्त होता है, क्या जहाँ पे हमारे करना है, पास तुमने किया क्या है? हाँ किया क्या, कि अरे वो करना था, बट बिकॉज उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट बेड रेस्ट के या कहीं खाली बैठने के, हम कुछ कंट्रीब्यूट ज्यादा कर नहीं पाते हैं. तो उस वक्त सिर्फ हम और हमारे थॉट्स होते हैं, क्योंकि थॉट्स बूढ़े नहीं होते जल्दी. थॉट्स बूढ़े नहीं है. थॉट्स को चलने के लिए लाठी नहीं चाहिए आपके दिमाग में आने के लिए, आपको लाठी के, बट थॉट्स तो आ रहे हैं आपके साथ धीरे धीरे. हाँ इंटेंस स्पीड कम होगी बट आएंगे जरूर. तो वो जो थॉट है कि अरे मैं शायद ये चीज सही कर सकता था, मैं शायद इससे अपने रिलेशन बेहतर कर सकता था, शायद मैं ये चीज परस्यू करता तो आज मेरी लाइफ और ज्यादा एक्साइटिंग होती, शायद मैं और ज्यादा जिम और हेल्थ पे फोकस कर सकता तो आज मैं इस प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहा होता, या मेरी नी की प्रॉब्लम ना होती, या मेरे मसल एट्रोफी ना होती. सो मैं नहीं चाहता कि वो रिग्रेट्स हो. इवन मतलब जेफ बेजोस भी यही बोलते कि वो अपने डिसीजन ऐसे लेता है कि उसे फ्यूचर में रिग्रेट कम से कम करना पड़े, कि उसके रिग्रेट्स बहुत मिनिमाइज हो जाए बहुत हद करेक्ट। तक. तो मुझे भी यही लगता है कि मेरा कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं होना चाहिए. मैं उस एस्पेक्ट में सोचता हूँ आई कांट बी बाउंडेड टू अ सिंगल प्रोफेशन कि मैं जिंदगी भर इसी में ये करूंगा. इनफैक्ट आई मीन, अगर इफ आई want to answer it honestly, more brutally honestly, I want myself to be financially free or stable at a certain age Of where I don't course. have to work for money and I can explore anything. I can work on my time. I'm not working for money basically. Correct. That's true. It's beautiful what you quoted. I think I will remember this quote that insects do specialized work. I believe in this completely because I didn't think of these line aspect. I'm so happy that I get to hear this from a youth. But it's amazing talking to you so far. But I want to ask you a very candid question because I am a teacher. I want to ask you, what role does teachers play in molding the mind of youngsters? See, parents, I've heard you speak about it, we know. But टीचर्स क्या हमें एक लेबल कर देते हैं स्कूल में कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हें ये पढ़ना है, तुम यहाँ मिडिल हो, एवरेज हो, तो तुम्हें ये करना चाहिए. तो somehow the bias and the stereotypes is always subtly spoken. वो हमारे माइंड में आ जाता है, नहीं नहीं हमारी लिमिटेशंस इतनी ही है बिकॉज हमें बोला गया है कि तुम्हारी लिमिटेशंस इतनी ही है. So, what do you think about teachers? And do you think that you have can share some experience of having good teachers in your life? I want to hear the good things also. या श्योर श्योर. का तो बहुत बड़ा रोल रहा है. स्पेसिफिकली आई वुड से एक दो या तीन टीचर मैक्स रहे अब तक की लाइफ में जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है. तो टू बी ऑनेस्ट, पहले मैं टीचर्स को इतना इससे इस नहीं देखता था कि यार उनका कुछ इन्फ्लुएंशियल एस्पेक्ट ये रोल है मेरी लाइफ में. बट मैं हाँ. बोलूंगा कि जितने भी ग्रेट टीचर्स हैं, आई कैन टेल वन थिंग अबाउट देम, ग्रेट टीचर्स इक्वल्स टू ग्रेट लीडर्स. एवरी एंड वाइस वर्सा एज वेल, ग्रेट लीडर्स इक्वल्स टू ग्रेट टीचर्स. हर ग्रेट लीडर वर्ल्ड में जो है वो एक अच्छा टीचर है कहीं ना कहीं. अगर आप नोटिस करें ध्यान से तो उनकी टीचिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी. जितने भी वर्ल्ड में ग्रेट लीडर्स हैं वही एक्चुअल लीडर्स हैं जो लीडर्स को आगे बनाते हैं. टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट टीचर्स के लिए आई फील लाइक कि इंडिया में मेरी एक लाइन है जो मैं बोलता हूँ कि मोस्ट इंडियन, मैं इंडियन पेरेंट्स और टीचर्स के हिसाब से जितना मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग इट, कि मोस्ट टीचर्स एंड इंडियन पेरेंट्स बेग फॉर रिस्पेक्ट व्हेन इट्स समथिंग दैट यू हैव टू अर्न फॉर. मतलब Okay. एक Yes. हमें, मुझे लगता है भीख में मांगने की Force. रिस्पेक्ट हाँ, बहुत ज्यादा correct. जरूरत है, कि जस्ट बिकॉज मैं पेरेंट्स हूँ तो मैं रिस्पेक्ट करो, जस्ट बिकॉज मैं टीचर हूँ तो ये, rather than कि दैट इज समथिंग जो आपको अर्न करनी पड़ती है. बिकॉज वो जो एज होती है ना बच्चे की, दैट इज वेरी लॉजिकल एंड क्यूरियस. वो बोलेगा मैं रिस्पेक्ट क्यों ही करूँ, मुझे क्या Correct. मिल रहा है, मैं क्यों रिस्पेक्ट करूँ. ठीक है. तो और टीचर्स में ये होता है आजकल, टीचर्स के साथ जो सबसे बड़ा एक इशू मैं समझता हूँ कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो अपने हिसाब से, ना कि स्टूडेंट्स के हिसाब से. वो
अपनी एक सेंचुरी, उनका अपने एक एनवायरमेंट, उनके एक अपने मेंटल एम्बियंस के हिसाब से वो नॉलेज को कन्वे कर रहे हैं। जो अच्छा टीचर और बुरे टीचर में फर्क, सबसे बड़ा डिफरेंस है, मैं हर कोई बोलता, व्हेन यू hiring a teacher, it's not about the knowledge, Yes. because having knowledge, delivering slash conveying that knowledge is on the two extremes. जरूरी नॉलेज मैं गेन कर सकता हूँ कहीं से भी, बट मैं टीचिंग की जो टैलेंट और जो पैशन है वो मैं कहीं से खरीद कर नहीं ला सकता। किसी इंटरनेट से मैं Amazon ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर नहीं कर सकता अपने घर पे। Correct. So we सो can see a Khan Academy के में बहुत अच्छे courses हैं. Whatever the teacher is teaching, somebody can do a better job by listening to it. But what is the use of a teacher standing in class is something different than content delivery. Yeah. टीचर्स आपको बेसिकली अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नॉलेज वो क्या दे सकते हैं, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा है तो Yes. बच्चा आज के टाइम में उसके पास हर कोई रिसोर्स है पढ़कर समझने का। टीचर कहाँ पे Yes. डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, आज टाइम ये है लोगों को सोचने का एंड जानने का। एंड Uh, टीचिंग शुडंट बी डन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ ठीक है मेकिंग मनी, कि अब मेरा कुछ नहीं हो रहा तो मैं टीचिंग करूँ। इट शुड बी बिकॉज मेरे लाइफ में मुझे टीचर का इम्पैक्ट 9th स्टैंडर्ड में पहली बार रियलाइज हुआ। अंडरस्टैंडिंग वो कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ, बाद में समझ में आया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लाइफ को भी टीचर कितना इम्पैक्ट कर सकता है, जो मुझे 10th स्टैंडर्ड में रियलाइज हुआ। एंड देन फिर मैं जब कोटा गया तो मुझे एक दो टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट किया मेरी लाइफ को, back उनके here. थॉट प्रोसेस ने बहुत इम्पैक्ट किया। So first of all, ninth, there was this guy when I was in tuition. So he used to come for part-time teaching ऐसे, तो his name was Mr. Arshad करके. So he used to teach us science. तो उन्होंने पहली बार मुझे एटम का कॉन्सेप्ट जब समझाया, I was like shit, मतलब this is so interesting. अगर आपको कोई सही से समझा दे तो ये जो मैं पढ़ Yeah. रहा हूँ ये कितना इंटरेस्टिंग है। बट कहीं ना कहीं उनके वजह से मैं ऐसा हो गया कि आई एम एज गुड एज माई टीचर इज। अगर मेरा टीचर मुझे Ah, इंटरेस्ट से बहुत पढ़ा रहा है तो मैं उसमें इंटरेस्ट लूंगा, नहीं पढ़ाया तो हाँ हाँ ठीक है चलो बस रट्टा मार लेना है। ah, ah. तो उन्होंने जब मुझे एंटम का कॉन्सेप्ट बताया एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन सब चीजों के बारे में, तब मुझे लगा कि यार अगर मुझे किस अच्छा कोई, और मैंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फिर मैंने पढ़ा ही नहीं बुक खोल के, जो भी मेरा कॉन्सेप्ट था मैंने उसी को अपने वर्ड्स में पेपर में लिखा, स्कोर्ड वेल, स्कोर्ड प्रीटी प्रीटी वेल। सो मुझे लगा कि यार यही चीज अगर मेरी लाइफ में और टीचर्स मुझे करके देंगे तो मैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ और Correct. मतलब एकदम अबव एवरेज स्टूडेंट बन सकता हूँ। फिर 10th स्टैंडर्ड में आई वेंट टू सम अदर क्लासेस, महेश, आई वाज इन महेश ट्यूटोरियल्स एंड देयर वाज दिस Yes. टीचर नेम डॉक्टर सागर गुरका, एंड ही वाज एन अमेजिंग टीचर। मतलब उन्होंने अपना, आई थिंक मैं इतना किसी टीचर को एडमायर नहीं कर पाया लाइफ में जितना आई एडमायर्ड हिम, एंड ही वाज आल्सो अ डॉक्टर। सो आई वाज लाइक यार मुझे डॉक्टर बनना है तो ऐसा डॉक्टर बनना है कहीं ना कहीं, एंड आई इवन Oh, टोल्ड हिम। एंड मैंने जिंदगी में किसी के लिए गिफ्ट नहीं लिया टीचर्स के लिए, या कोई ये नहीं लेकर गया था अपने इससे कि मुझे सेव करके किसी के लिए लेके जाना। तो जब उनका लास्ट लेक्चर था तो आई बॉट दिस बुक अबाउट सम जीनोम, आई डिडंट इवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम, बट आई वाज लाइक कुछ तो लेके जाना है सबके लिए। सो आई बॉट अ wow. पायरेट, I bought a pirated, I don't know if it was pirated or original. I bought some book So, and I was what was like, his name? What is his name? Dr. Sagar Gudka, Dr. Sagar. Dr. Sagar Gudka, Gudkha, D-U-D. G, 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 Gud, G, G, G. G, Okay. Gudkha. Okay. Wow. So Lovely. even when he was like leaving on the last day, जब उनका लेक्चर खत्म हो रहा था, एंड इनफैक्ट उनके बाद उन्होंने हमारे पढ़ाने के बाद वो क्लास भी छोड़ दी उन्होंने, आई थिंक ही लेफ्ट टीचिंग एज वेल। सो मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि उनका जो लास्ट टीचिंग का टाइम था वो भी हमारे साथ था। एंड आई वाज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, एंड ही जस्ट, पता नहीं वो मुझे जानते नहीं थे बट ही स्टिल आस्क्ड मी टू स्टैंड अप, एंड आई वाज लाइक यू वांट टू से समथिंग, and I'm like ki, yeah, yes sir, I admire you a lot, and I think at this moment of my life, at this juncture, you are my like real life hero and I want to be someone like you. The way he used to teach कि मतलब 3 3 घंटे के लेक्चर्स पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा था अभी 10 मिनट हुआ है क्या पढ़ाकर। Wow. That was this smooth his lectures used to be. एंड उसके बाद फिर लाइक उस तब मुझे भी बहुत रियलाइज हुआ, उन्होंने भी मुझे थॉट, उन्होंने उनकी एक लाइन थी बहुत यूनिक जो उन्होंने मुझे बोला कि जस्ट रिमेम्बर दिस कि नो मैटर आप लॉयर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, उस सब की जगह उनके पर्टिकुलर ऑफिस में, जैसे इंजीनियर कहीं फैक्ट्री में चाहिए, डॉक्टर कहीं हॉस्पिटल में चाहिए, लॉयर कहीं कोर्ट में चाहिए, बट ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज एक अच्छा इंसान हर जगह जरूरत है अच्छे इंसान की। तो ट्राई करना दैट यू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग मोर देन यू एक्सेल इन योर प्रोफेशनल लाइफ। सो दैट So स्टिक्ड विथ मी व्हेन आई nice. वाज इन 10th स्टैंडर्ड की यार ये एक चीज है कि आई विल स्ट्राइव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इज बीइंग। एंड फिर ऐसे लोगों से मैं मिलने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद भी ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अच्छा इंसान ऐसा होता है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
नो मैटर इफ यू आर रिच और पुअर और सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, बट अच्छे इंसान का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. And Kota में Superb. then there was this teacher called as Dr. Lalit Chauhan. So he also shaped my life, usually through his thoughts and perspective. Because उन्होंने भी इतने unsuccessful अपनी जिंदगी में मैं कह सकता हूँ सक्सेस का मुंह बहुत वक्त तक नहीं देखा. उन्होंने अपने काफी मल्टीपल स्ट्रगल्स रहे उनके, एंड उसके भी वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट. उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स देखे, उसके बाद भी ही मेड इट, मतलब ही मेड समथिंग फॉर हिमसेल्फ, एंड वो इस लेवल तक आए. तो या आई थिंक कि वो सब टीचर्स ने मुझे बहुत यूजली इम्पैक्ट किया. इसके अलावा और कोई नहीं है. बाकी यूजली मैं रिस्पेक्ट तभी, अनलेस एंड अनटिल अंदर से ना आए मुझसे वो रिस्पेक्ट नहीं निकल पाती है. आई एम दैट काइंड ऑफ So पर्सन. beautiful. Fahad, I think this is the first time in interview I am emotional listening to your thoughts, and it made me really very emotional to listen to your story. It's really amazing. इतना ज्यादा हम हर वक्त ये सोचते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा हम हर हर वक्त हम कुछ कंटेंट डालने के बाद देखते हैं कितने लोग लाइक कर रहे हैं, हमारा कौन सा चीज ज्यादा, एनालिटिक्स में हमारा ध्यान इतना ज्यादा है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कितने व्यूअर्स आए, कि हम उसी में उलझ के रह जाते हैं. एंड इट इज ओवर किलिंग एंड इट्स बिकमिंग अ वेरी अ बर्डन of sort, which we need to come out and take a back seat. So I would ask you, because I myself go through this, but what a youth must be going through, and how, what do you think is that inner self जो हमारा है वो दबता जा रहा है, और बाद में बाहर की जो नॉइज है वो इतना ज्यादा लाउड हो गया है कि हमें आज यहाँ दिखना है, हमें आज ये बोलना है, 10 लोग क्या कर रहे हैं. पहले हम सोचते थे कि हाँ, वो बंदा आईआईटी जा रहा है तो हमें वो करना है. आजकल हम देखते हैं 10 15 20 लोग इतने अच्छे यूट्यूबर बन गए हैं इतने यंग एज में, हम क्यों नहीं कर सकते. इवन दैट इज क्रिएटिंग प्रेशर. सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ यू हैंडल ऑल दिस? आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, मैं भी इस चीज का विक्टिम हूँ कहीं ना कहीं. आई विल बी वेरी एवरी ब्रूटली ऑनेस्ट. मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज का विक्टिम हूँ. बिकॉज एक वक्त ऐसा था कि इनिशियली आई वाज ट्राइंग टू शेयर कंटेंट जो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हाँ मुझे ये शेयर करना चाहिए उसके वजह से, पर आई वाज गेटिंग एनी व्यूज, आई वाजंट गेटिंग एनी व्यूज. तो आई वाज लाइक, मतलब क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? आई थिंक आई शुड कंफर्म कि और सब क्या कर रहे हैं वो सब देखना चाहिए मुझे, एंड उसके हिसाब से वैसे कुछ पोस्ट बनाना चाहिए. लाइक या मैं मीम्स मीम्स भी बना रहे हैं तो मीम्स भी ऐसा होना चाहिए कि जो कि सिर्फ मुझे जबरदस्ती मीम्स बनाना है. बट 2 3 बार मैंने उन सब चीजों की कोशिश की, बट मुझे लग रहा था कि यार नहीं नहीं, इट्स नॉट वर्किंग वेल. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू चेज कंसिस्टेंसी बाय डूइंग सम मोनोटोनस वर्क, बट मैं अपनी ऑथेंटिक सेल्फ तो लूज ही कर रहा हूँ. एंड वो करने के यस, बाद वो करने के बाद भी एक वियर्ड सी फीलिंग आती है अगर आप कि कॉन्स्टेंटली दिस इज अपने आप नॉट से, मी. हाँ, हाँ, दिस इज करेक्ट. नॉट मी. आप कॉन्स्टेंटली सेल्फ टॉक करने वाले अगर इंसान है, एक होता है कि आप कोई होता है इंसान की या तो स्विच ऑफ कर देता है या अपने इनसाइड का वॉल्यूम कम कर देता है, तो वो उसके लिए फिर चल भी जाता है सलून के लिए. बट अगर आप कॉन्स्टेंटली सेल्फ टॉक करते हैं, दिन में अपने साथ वक्त बिताते हैं, तो आपको वो आपकी दिन भर की जो चीज है ना वो आपको कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ होप करती है कि हाँ मैंने ये क्यों ऐसा यस, कर रहा हूँ, मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं खुश तो नहीं हूँ, मैं बस जबरदस्ती इसको क्यों कंफर्म कर रहा हूँ, जबरदस्ती इसी फ्लो के साथ क्यों बह रहा हूँ. तो देन उसके बाद करेक्ट. धीरे धीरे करके मैंने वैसे कुछ कंटेंट भी ट्राई किए लिखने के, या उन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने के जिनके बारे में मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ, जिसका कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक किसी भी टॉपिक से, या किसी को इंटरकनेक्टेड नहीं है. लेकिन जैसे अगर मैंने एक टॉपिक लिख दिया हाइंडसाइट बायस पे, तो हाइंडसाइट बायस पे पढ़ लिया, तो अब मुझे दूसरा मन क्या, मैंने कहीं सिविल स्कोर सुना, तो आई वाज लाइक सिविल स्कोर क्या होता है, लेट मी जस्ट रिसर्च अबाउट इट. फिर मैंने अपने एक फैमिली फ्रेंड है जो बैंक में काम करता है, कॉल्ड देम अप, क्या सिविल स्कोर होता क्या है, व्हाट आर ये क्या कहते हैं एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है. तो आई वाज स्टार्टिंग की चलो उसके बारे में थ्रेड लिखते हैं. हाँ ज्यादा लाइक्स नहीं मिल रहे, बट ठीक है चलेगा कोई करेक्ट. बात करेक्ट. तुम्हें 3 लोगों को डिनर पे लेके जाना है जिनको तुम नहीं जानते हो, कभी मिले नहीं हो, तो वो नहीं. कौन 3 जन हो और कहाँ जाओगे? 3 जन में इज इट सम सेलिब्रिटी और इट्स लाइक कोई? Anybody, but you don't know that person. You अच्छा, have आई not डोंट met नेम, them. I don't know them. I haven't met them. I think I would love to take them someplace. Uh, जैसे I would love to take them around Mumbai at a beach side, या usually ऐसे Okay. टाइम पर जहाँ पर लोग बहुत कम है, जहाँ पर Okay. distractions बहुत कम है, and ठीक है. I would take away their phones, just ओके. get their phones. परफेक्ट. वेरी गुड. हाँ, कौन से 3 लोग हैं? इन लोगों में एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा कोई भी एक एक तो मैं किसी एंटरप्रेन्योर को लेना चाहूंगा. दूसरे में फिलोसफी पर्टिकुलर थिंकर्स जो हैं उन्हें इंक्लूड करना चाहूंगा कि या आई वुड लाइक टू टेक अ नाइस नाइस
kind-hearted, beautiful girl on some kind of a Wow, date, lovely. Yeah, I yeah. would Why say, not? because that's an essential part Cool. of me being human or a man, I would say. Yeah. Beautiful. You didn't give names, but you gave me the genre on which, like, you would like to take a philosopher, you would like to take a entrepreneur. Yes, why not? And of course, to give company, a young girl. Wow, lovely. I like your answers. Okay. This is the time, Fahad, when you have to ask me a question, and I would like to answer it as honestly as possible. Let's shoot the question. Okay, so my question would be ki, how old are you? I mean, I know Me? that's not the right Okay. question to ask to a Yeah, woman. yeah, yeah. I'm 54. Okay, you're 54. So 54 on this planet is a very significant time. So मैं पूछना चाहूंगी कि what is that one lesson जो आपको लगता है कि ये आपने और लोगों से ज्यादा रियलाइज किया जो आपके सराउंडिंग में है and that gives you an edge over other people. What's that one advice or one lesson जो आपको through गलती करके एहसास हुआ है या through self किसी भी तरह से आपको रियलाइज हुआ है लाइफ में. So I would love to know that particular. कोई एक पर्टिकुलर एडवाइस या एक पर्टिकुलर लेसन जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ. Yeah, if I look back at every stage, like teens में कुछ अलग था, उसके बाद, but when I look back now, the most one underlying thing which I think that everyone realizes much later in life, and I hope I realize now, और ये 20-25 साल पहले होता तो और अच्छा होता, is that don't be don't be competitive. कि कोई भी कुछ भी कर रहा हो, तुम जितना दूसरों को देखोगे उतना आपको लगेगा तुम इंफीरियर हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अरे वो आईआईएम चला गया, वो ये कर पा रहा है, वो ये फील्ड में है, वो ये, तो तुम हर समय बाहर ही देखते हो. सो द फास्टर यू रियलाइज दैट यू, एज यू सेड फर्स्ट लाइन, दैट यू आर यूनिक, वो जितना जल्दी तुम्हें अपना कोर पता चल जाए, you are sorted where you will, I'm not saying that you will make a huge amount of money, or but you will live a happy life, you will have a stress free life. When I see people who are successful now, I send them a message, you are doing so well, I'm so happy for you, I'm sending you good vibes, I'm sending you congratulatory messages. So I randomly send good messages to even people who are doing much better than me. I never look at them as कि मुझे वहां पहुंचना है. मैं उनके सक्सेस में खुश हूँ, ये मैंने लेट सीखा है, बट ये मेरा बहुत बड़ा लर्निंग है लाइफ में, एंड आई थिंक इट डज वंडरफुली वेल for you as a person. You feel so calm, you feel so happy. Let's now end it with a song. I know you love singing, and I want you to end it on a very lighter note and sing whatever you want to sing today. Over to you. It's I think it's somewhere for the it's mostly मतलब romantically से गाया जाता है, but I think Please. mostly it's for the people जो I think मेरे जाने के बाद भी रहेंगे उनके लिए है, कहीं ना कहीं बहुत जिनके फिलोसॉफिकल सॉन्ग है. बताओ, जिन चलो. जिनके ओके. लाइफ में मैंने कहीं ना कहीं शायद इम्पैक्ट किया हो, वेदर इट माय चिल्ड्रन और किड्स और स्टूडेंट्स और मेरे वाओ, परिवार लवली. और माय पार्टनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी तुम ख्वाबों में आते ही रहना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना. Yeah, that's all. Beautiful, beautiful song. Very well sung and very beautiful. You sing very well. Continue singing and inspiring people. And So, आप बहुत ज्यादा लोगों को गाना सुनाया करो, because it's very soulful. Your song is so thank beautiful. you. Thank you so much, Fahad, today for coming, and I hope you had a good time. I had an amazing time. You made me cry, made me laugh, and this is one of the interviews I will really cherish. Likewise, मतलब I mean, to be honest, मुझे भी टाइम कैसे बीत गया ओवरऑल. I mean, अभी तक जो भी इंटरव्यू हमारा हुआ, and yeah, this is my first interview and I always remember this. मतलब मुझे जिंदगी में हमेशा याद रहेगा. This is something that I'll tell my future generations to Children, come. yeah. Yeah.
And Thank you so much. yeah, So we come to the end of this today's talk show, and we'll bring another youth next week. Keep watching my channel, keep showing love, and keep subscribing. We have reached 3.72K subscribers, and please give it more love because we get such authentic young youth to speak about themselves. This is the channel open to all youth who has something to share. And before I end, as I every week say this line, you have only one planet. Do a little bit today. Start from your home. A little small step. Carry a glass bottle instead of a plastic bottle when you leave home, instead of buying a packaged water bottle. Remember, every step counts. See you again next week, and bye bye.